we are dealing with problem solving session for heat. Let us deal with the first problem. So the first problem is stating something like this. A barometer reads 75 centimeter on a steel scale. The room temperature is 30 degrees Celsius. The scale is correctly graduated for 0 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of steel is 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius, and the coefficient of volume expansion of mercury is 1.8 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. Find the correct atmospheric pressure. So if we approach this particular problem, so we say that the 75 centimeter length of steel at 0 degree Celsius, मतलब अपने लिख रहे हैं when theta is equal to 0 degree Celsius, then the length of steel scale is given to us as 75 centimeter, and now the temperature is 30 degrees Celsius. The theta final is equal to 30 degrees Celsius. So over here I can say that delta theta is equal to theta final minus theta initial, that is 30 degrees Celsius. तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ स्टील स्केल, इसको एल थीटा मान लेते हैं. तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अगर अपने लगाएं तो 1 प्लस अल्फा अपने को डायरेक्टली दिया हुआ है 1.2 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा थीटा यानी कि 30. तो ये जो है ये अपना पहला इक्वेशन बन गया इधर. अब दूसरा इक्वेशन के लिए अपने एक काम करते हैं, मरकरी को कंसिडर कर रहे हैं. तो लिखा गया है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, यानी कि अपने बात कर रहे हैं गामा के ऊपर. तो गामा इज गिवन टू अस एज 1.8 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. So from here I can write that alpha for mercury अगर अपने लिखेंगे तो 1/3 times of गामा लिखेंगे. तो 1/3 अगर कर देंगे तो आ जाएगा 0.6 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. ये कुछ ऐसा आ जाएगा. तो over here again we consider that the length of mercury column at 30 degree Celsius becomes L theta, और 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने एल नॉट मान लेते हैं. तो यहाँ पे अपने लिखेंगे कि एल थीटा इज इक्वल टू एल नॉट, तो 1 प्लस यहाँ पे अल्फा फॉर मरकरी आना चाहिए. तो ये अपने 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू डेल्टा थीटा विच इज 30. तो अपने ऐसा कंसिडर कर रहे हैं. तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम बोथ द इक्वेशन वी कैन इक्वेट देम. एल थीटा दोनों के लिए सेम आना चाहिए. So if I equate, then we will be able to calculate L naught, which is the correct atmospheric pressure. तो दोनों को अगर अपने इक्वेट कर दें इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं that L naught is equal to 75 1 plus 1.2 into 10 to the power minus 5 into 30 divided by 1 plus 0.6 into 10 to the power minus 4 into 30. So this is the basic thing which can be done. And on solving over here, we are attaining a value somewhat equal to 74.89 सेंटीमीटर. तो जो L नॉट है इसका वैल्यू आ जा रहा है 74.89 सेंटीमीटर. So this is the answer for this particular problem. इसको एक बार वापस से सम अप कर देते हैं एक तरीके से. अगर तो अपने ऐसा बोल रहे हैं कि बैरोमीटर जो है वो 75 सेंटीमीटर रीड कर रहा है, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, करेक्टली ग्रेजुएट किया गया था उसको 0 डिग्री पे. तो ओवर हियर वी कैन से कि करेक्टली ग्रेजुएट 0 पे किया गया था. लेंथ 75 था, तो अभी कितना होगा, तो अभी इतना हो जाएगा. मरकरी के केस में अपने बोल रहे हैं कि मरकरी का अपने को गामा दिया हुआ है और अपने को करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा है. मतलब क्या हो गया, जैसे अपने बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो ऐसे कितना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी अपने बोल सकते हैं. तो ओवर हियर वी आर टेकिंग गामा इज गिवन, सो अल्फा वी wrote for mercury by 1/3 times gamma, and then we use the formula L theta equal to L naught 1 plus alpha delta theta, और फिर यहाँ से L naught हम लोगों ने निकाल दिया which is the length of mercury, जिसको अपने बोल सकते हैं correct atmospheric pressure. So let us deal to the next problem. Let us deal with the next problem. Problem number 2. A vessel of volume 30 liter contains ideal gas at the temperature 0 degree Celsius.
after a portion of the gas has been let out, the pressure in the vessel decreased by delta P equals 0.78 atmosphere, the temperature remaining constant. Find the mass of the released gas. The gas density under normal conditions is equal to 1.3 gram per liter. देखो इस प्रॉब्लम को करने के लिए अप्रोच अलग अलग है, पहले इसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो over here what we are exactly intending to say is that let us consider that we have a vessel. So the vessel is somewhat like this. Now this is filled with a volume of 30 liter, and this was at an initial temperature of 0 degree Celsius, which is 273 Kelvin temperature. Now a portion of gas is let out. अब यहाँ पे अपने एक बात बोलते हैं कि जो अपना वर्किंग फॉर्मूला है उसमें पे बोलते हैं PV इक्वल टू NRT. आइडियल गैस इक्वेशन तो यही है. तो अब अगर यहाँ पे जैसे आइडियल गैस लिखा हुआ तो PV इक्वल टू NRT अगर अपने यूज करें तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ दिस पर्टिकुलर वेसल इज गिवन तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रॉब्लम में बोल ही दिया गया. तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जितना कंटेनर में उसके प्रोपोर्शनल है. तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू n. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही हो रहा है कि आफ्टर पोर्शन ऑफ द गैस हैज बीन लेट आउट, मतलब द मोल्स इज रिड्यूस्ड. जो n का वैल्यू उसको कम बेसी किया गया है, तो उसको कम करेंगे तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द रिलीज्ड गैस. द गैस डेंसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन इज गिवन, और ये चेंज इन प्रेशर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है. तो लेट अस कंसिडर कि इनिशियली इसके अंदर M1 गैस है, and after some time the gas container will contain M2 volume of M2 amount of gas. तो इनिशियली अपने M1 मान रहे हैं, ये हो गया इनिशियल, और फाइनली अपने मानते हैं कि हो जाएगा M2. ठीक है ना भाई. और यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको W मान लेते हैं अपने, या कैपिटल M मान लेते हैं. तो इनिशियल अगर अपने मोल्स अगर लिखें तो N1 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट. फाइनल मोल्स अगर लिखेंगे तो अपने लिखेंगे फिर से क्या, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट. हम लोग क्वेश्चन में निकालना है क्या, हम लोग क्वेश्चन में निकालना है डेल्टा M, यानी कितना मास लेट आउट किया गया. दैट इज वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट, या रेदर अपने को पता है कि फाइंड द मास रिलीज्ड. तो यानी कि डेल्टा M अपने को निकालने के लिए बोला गया डेल्टा M इज M1 माइनस M2. दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट. दिस इज द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट. तो अपने कैसे अप्रोच करें, तो अपने सबसे पहले लिखते हैं कि भाई प्रेशर पहले क्या था. तो P1V इज इक्वल टू N1 RT, यानी कि M1 बाई कैपिटल M RT. So from here I can write that P1 is equal to M1 RT by capital M into volume, and then we can write P2 is equal to M2 RT by capital M into volume. So now the drop in pressure decrease अपने को दिया हुआ है कि कितना हुआ है, यानी कि P1 minus P2 is given to us. तो दोनों इक्वेशन को अगर अपने सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया अपने पास. तो इन दोनों इक्वेशन को अगर अपने सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो from here we get P1 minus P2, which will turn out to be M1 minus M2 RT by capital MV. तो ये कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास. तो M1 minus M2 can be written as delta M. So over here I can write that delta M is equal to P1 minus P2 can be written as delta P. यहाँ पे आ गया capital MV by RT. So this is the thing that we have attained. Now the problem is अपने को क्वेश्चन में जो है, अपने को क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस नहीं दिया हुआ है. So the gram molecular weight of the gas is not given, and we are given the other information. So over here we are going with this approach that we are using Pm equal to rho RT. Pm equal to rho RT. अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर अपने ध्यान से अगर देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस. तो अंडर द नॉर्मल कंडीशंस का मतलब हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले कंडीशन पे, यानी कि P नॉट पे. तो P नॉट M equal to rho RT. So over here if I want to write it in terms of RT and M, so I can write over here that RT by M is equal to P naught by rho.
or we can say that rho by P naught can be written as RT by M, M by RT. तो यहाँ जो M by RT है उसको अपने रिप्लेस कर सकते हैं, तो अपने यहाँ पे यही काम कर रहे हैं, that we are replacing delta M. So delta M can be written as, this can be written as delta P, and M by RT can be written as rho by P naught, and over here we have V, so rho V by P naught. So from here I can calculate delta M. delta P जो है अपने को दिया हुआ है कितना, 0.78 एटमोस्फियर, 0.78 एटमोस्फियर. P नॉट को अपने क्या लिखते हैं, 1 एटमोस्फियर. तो मैंने डेल्टा P बाई P नॉट लिख दिया है, इनटू रो. तो रो का वैल्यू कितना दिया है, 1.3 ग्राम पर लीटर. तो 1.3 ग्राम पर लीटर, एंड वी हैव 30 लीटर वॉल्यूम. तो 30 लीटर वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया गया. इसको अगर कैलकुलेट अगर करते हैं तो वी आर गेटिंग वैल्यू which is equal to 30 grams. So this is the amount of gas which is released. This is the amount of gas which is released from this particular vessel to attain this condition. सिंपल प्रॉब्लम है, पीवी इक्वल टू एनआरटी पे बेस्ड, जिसमें अपने वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और प्रेशर जो है वो मोल्स पे डिपेंड कर रहा है. सो लेट अस डील विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, टू क्लोज्ड वेसल्स of equal volume contains air at 105 kilopascal 300 Kelvin temperature and are connected through a narrow tube. If one of the vessels is now maintained at 300 Kelvin and the other at 400 Kelvin, what will be the pressure in the vessels? तो भाई ऐसा सवाल पूछा गया. इस अरेंजमेंट को अगर अपने एक बार अगर ड्रॉ करके समझे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. तो यहाँ पे अपने एक काम करते हैं, तो ये दो वेसल बना देते हैं, और ये दो वेसल को जोड़ने के लिए हमारे पास एक नैरो ट्यूब है. तो ये नैरो ट्यूब से ड्रॉ कर दिया गया इसको. अब फिर से एक बार सवाल पढ़ लीजिए, टू क्लोज्ड वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. तो इक्वल वॉल्यूम अगर बोल रहे हैं तो मतलब हो गया कि इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसका वॉल्यूम भी V हो गया. कंटेन्स एयर एट 105 किलो पास्कल. तो P इनिशियल अगर अपने लिखें तो here I can write that P initial, so this is equal to 105 किलो पास्कल, एंड टेम्परेचर इनिशियल, इसको अपने P1 T1 भी लिख सकते थे, ठीक है इनिशियल लिख दिया तो इनिशियल ही रहने दो. तो ये हो गया 300 केल्विन, एंड आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब. नैरो ट्यूब बोलने का मतलब है इसका वॉल्यूम फिलहाल के लिए अपने कंसिडर नहीं कर रहे हैं. If one of the vessels is now maintained at 300 Kelvin and the other is maintained at 400 Kelvin, तो ये जो है ये इनिशियल कंडीशन अपने को दिया हुआ. तो इनिशियल कंडीशन में ऐसा मान लेता हूँ that it contains n number of n moles of gases. तो if it contains n number of gases, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ V initial. तो V initial अगर लिखे तो V initial यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपने एक काम करते हैं, यहाँ पे V इनिशियल अपने लिख लेते हैं 2V. तो अब अगर PV इक्वल टू NRT अगर अपने इनिशियल कंडीशन के लिए अगर पुट अगर कर देते हैं तो मतलब हो गया P1 V1 इक्वल टू NRT1. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ये बात पहले समझ में आ जाना चाहिए. ये PV इक्वल टू NRT बेसिक इक्वेशन अपने यूज कर रहे हैं और ऐसा पुट कर दिया. अब बोल रहा है फाइनल कंडीशंस में क्या किया गया. तो फाइनल कंडीशन में इस डायग्राम में थोड़ा छेड़छाड़ कर लेते हैं अपने. फाइनल कंडीशन इधर समझ लेते हैं. तो फाइनल कंडीशन में बोल रहा है, नाउ दिस वेसल इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन व्हाइल द अनदर वन इज मेंटेन्ड एट 400 केल्विन. तो मैं बोलता हूँ इधर गैस जो है बढ़ जाएंगे, इधर N1 गैस हो जाएगा, इधर N2 गैस हो जाएगा. ये N1 N2 हो गया भाई. नाउ if the two vessels are connected and there will be a common pressure, तो अब कॉमन प्रेशर अगर होगा दोनों में प्रेशर अपने सेम मान लेते हैं, और वही अपने को पूछा गया कि व्हाट विल द प्रेशर इन दी वेसल्स. तो यहाँ पे N1 और N2 अगर बढ़ जाएगा, बट वन थिंग इज क्लियर दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस विल रिमेन अनचेंज्ड. सो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N. ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन. N1 प्लस N2 विल रिमेन इक्वल टू N. वो वाला बात अलग नहीं होने वाला है, ठीक है ना भाई.
So now what we do, we apply equation for this one. तो इसके लिए पहले वाले वेसल के लिए अगर अपने इक्वेशन अगर अपने लगाएं तो अपने बोल देते हैं P2 V equal to N1 R and T can be written as 300. So from here I can write that N1 is equal to P2 V by 300 R. And similarly over here we can write that if here the pressure is P2 V, which is equal to N2 R into 400. So from here I can write that N2 is equal to P2 V by 400 R. तो N1 N2 का अलग अलग वैल्यू ऐसा आ गया, अपने इसको A B नाम दे देते हैं. तो A और B को उठा करके अगर अपने यहाँ पे यूज अगर करते हैं कि N1 प्लस N2 इक्वल टू N, तो अपने यहाँ पे ले देते हैं P2V बाई 100R. तो P2V बाई 100R अपने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हो गया 1/3 प्लस 1/4. Now this is equal to N. So N can be written as P1 into 2V. So twice of P1V upon RT1. तो T1 is equal to 300. तो यहाँ पे ले दो 300R. ये ऐसा कर दिया हम लोगों ने. ठीक है ना, बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स इज रिमेनिंग अनचेंज्ड. वो तो कहीं उड़ के बाहर नहीं जा रहा है, कहीं लीकेज नहीं हुआ है, कोई चेंज इन मास कंटेंट नहीं हुआ है. तो इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं तो वी आर कैलकुलेटिंग P2 और P1 का वैल्यू अपने को 105 किलो पास्कल पता है. तो वॉल्यूम और वॉल्यूम यहाँ से कट गया, R और R यहाँ से कट गया, ये 00 यहाँ से, 00 यहाँ से कट गया. So over here we can say 4 plus 3 is 7, 7/12. So 7P2 by 12 is equal to 2P1 by 3. तो P2 is equal to 8/7 times of P1, which is equal to 105 kilopascal. So over here on solving we obtain 120 kilopascal. So this is the correct answer for this particular problem. 120 kilopascal. So this is how we approach this kind of a problem. चलिए भाई, let us deal with the next problem. Problem number 4. Figure given below shows a vertical cylindrical vessel separated into two parts by a frictionless piston free to move along the length of the vessel. The length of the cylinder is 90 centimeter and the piston divides the cylinder in the ratio 5:4. तो 5:4 का मतलब ये हो गया कि ये 50 सेंटीमीटर हो गया और ये जो है ये 40 सेंटीमीटर हो गया. 90 है, 5 और 4 के रेशियो में डिवाइड हो गया. Each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of ideal gas. तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.1 मोल है और N2 is also equal to 0.1 moles. The temperature of the gas is 300 Kelvin in each part. Very good. So over here temperature is also same, 300 Kelvin, 300 Kelvin. Calculate the mass of the piston. चलो भाई, mass of the piston अपने से पूछा गया. So over here this is very important. जब भी अपने को mass of the piston पूछेगा तो अपने कुछ ऐसा ही करेंगे. तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ. Let cross section area be A. तब ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है. तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपने बोल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ. तो ओवर हियर आई कैन राइट दैट V1 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि A इनटू लेंथ. सो लेंथ वी आर राइटिंग इन मीटर, तो 50/100. एंड ओवर हियर इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट्स आई कैन राइट V2 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ. तो हो गया 40/100. तो हो गया V2 का बात. तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर है इस तरफ वो हो गया P2 और जो प्रेशर इस तरफ है वो हो गया P1. नाउ वी विल बी ड्राइंग FBD ऑफ पिस्टन. बहुत ध्यान से सुनना भाई, मास ऑफ पिस्टन के ऊपर सवाल है तो ध्यान से सुन लो. तो अपने थिन एक पिस्टन ड्रॉ कर लेते हैं इधर. सो ओवर हियर ड्यू टू प्रेशर P1 a force is acting over here which is equal to P1 into A. जो ये वाला जो गैस है ये और जगह ऑक्यूपाई करने के लिए इसको ढकेलता होगा इस तरफ P1 into A से, प्रेशर into एरिया. तो नीचे वाला गैस जो वो भी तो कोई चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी करेगा P2 into एरिया. And now the next fact is the weight of the piston which is acting in the downward direction W, जो हम लोग से पूछा गया mg. This is acting in the downward direction. तो अब अगर इक्विलिब्रियम का बात किया गया, बात ऐसा बोला गया बाय फ्रिक्शनलेस पिस्टन फ्री टू मूव, और ऐसा करने के बाद इस पॉइंट पे आकर के इक्विलिब्रियम हटे नहीं जाता जब 50 और 40 रहता है. तो अपने यहाँ पे अगर ऐसा बोल सकते हैं द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द फोर्सेस एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन.
तो फोर्सेज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द फोर्सेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर अपने बोल देते हैं तो ओवर हियर वी कैन से दैट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है P2 into A और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है P1 into A प्लस वेट mg. So over here I can write that mg is equal to P2 minus P1 into area A. अब P2 माइनस P1 निकालने के लिए क्या किया जाए तो अपने यहाँ पे यूज करते हैं PV इक्वल टू nRT. तो P1 V1 इक्वल टू nRT. अब यहाँ पे बात में ध्यान दिया जाए कि nRT दोनों में सेम है, n दोनों में 0.1 मोल 0.1 मोल, R सेम है, टेम्परेचर 300 केल्विन 300 केल्विन. तो ओवर हियर वी कैन इजीली से दैट P1 is equal to nRT by 50A by 100 है तो 100 ऊपर चला गया. NP2 is equal to nRT 40A और ये भी 100 ऊपर चला गया. तो over here we can say that mass is equal to P2 minus P1. तो P2 minus P1 का मतलब कितना हो गया? P2 minus P1 का मतलब हो गया nRT और 100 और A. ये सारा पार्ट तो हम लोगों ने ऊपर ये वाला पार्ट में न्यूमरेटर वाला पार्ट को सजा लिया. nRT 100 nRT 100 ये कॉमन भी ले लिए, इधर ऐसा रख लिए. यहाँ पे P2 माइनस P1 वाला पार्ट है यानी कि हो गया 1/40A माइनस 1/50A. बात समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से. 1/40A माइनस 1/50A. तो P2 और P1 पहले यहाँ पे अलग अलग लिख दिया. यहाँ पे देख रहे हैं कि nRT 100 और nRT 100 कॉमन है. चाहो तो एरिया भी कॉमन ले, लिखा नहीं है, अगले लाइन में ले लेते हैं. तो मास ऑफ पिस्टन M इज टर्निंग आउट टू बी, n का वैल्यू पुट कर दिया जाए 0.1, R का वैल्यू पुट कर दिया जाए 8.3. ये हो गया टेम्परेचर का वैल्यू हो गया कितना भी 300 केल्विन इंटू 100. यहाँ से एरिया वाला पार्ट नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा. 40 और 50 में से 10 भी कॉमन ले लिया जाए तो 1/4 माइनस 1/5, 5 माइनस 4 हो गया 1/20. सो दिस इज द मास ऑफ द गैस व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग. और यहाँ पे G से डिवाइड कर देना चाहिए हम लोगों को. सो G के लिए लिख सकते हैं 9.81 या सिंपल 9.8. तो इसको अगर अपने कैलकुलेट अगर करें तो वी आर टर्निंग आउट टू बी 12.7 kg. So this is how we calculate the mass of the piston. जब भी पिस्टन वाला क्वेश्चन रहेगा तो अपने इस तरीके से करेंगे. whenever the piston is placed vertically we need to see कि फोर्सेस ऊपर की तरफ कौन सा है, फोर्सेस नीचे की तरफ कौन सा है, और उसका खुद का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट द टू. ठीक है ना भाई. यहाँ पे G देख लो भाई, G इधर नीचे ले लिए ना, ऐसा कर दो. तो मास हम लोगों को निकालना है तो G से डिवाइड कर देना. तो 12.7 kg इज द करेक्ट आंसर. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. तो ये जो है थोड़ा अच्छा टाइप का सवाल है, इसमें थोड़ा और अटेंटिवनेस रखना पड़ेगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया भी अलग अलग है. 1 मिनट रुकिए, सवाल पढ़ देते हैं. हम ही करेंगे तो कुछ करना तो है नहीं, हम ही को करना है. तुमको खाली देखना है बस, तुम खाली देखो कि कैसे हम कर रहे हैं बस. चलो भाई. So we are dealing with problem number 5 over here. A smooth vertical tube having two different sections is open from both ends and equipped with two pistons. यहाँ पे पहला एक बात जो है मैं इसको मार्क करते चलता हूँ. Open from both ends, equipped with two pistons of different areas as shown in the given figure. Each piston slides within a respective tube section. 1 mole of ideal gas is enclosed within the piston with a non-stretchable thread. The cross-sectional area of the upper piston is this much times greater than that of the lower one. So delta S is given to us. The combined mass of the two piston is equal to 5 kg. The combined mass, मतलब अगर इसका M1 M2 है, दोनों मिला के 5 kg. The outside air pressure is 1 atmosphere. By how much Kelvin must the gas between the pistons be heated to shift the piston through a length of 5 centimeter? तो 5 सेंटीमीटर जो है शिफ्ट होना चाहिए
तो कैसे हीट करेंगे? तो सबसे पहले तो अपने को बेसिक्स अगर सोचें तो अपने को ऐसा सोचना चाहिए कि शिफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा। तो दिस फैक्ट इज क्लियर दैट द शिफ्ट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाइल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, गैस को अगर अपने हीट करेंगे, मोल अगर कांस्टेंट है, बाहर का प्रेशर अगर कांस्टेंट है, ये दोनों को अगर बांध करके रखें नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड से, तो इसका एक ही मतलब है कि अगर इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, देन ओनली मोर गैस विल कम इन दिस रीजन विच इज अ ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन। तो ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन की तरफ अगर जाना है तो इसका मतलब ये हो गया कि गैस जब हीट करेंगे तो ये वाला पिस्टन कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, ये फाइनल पोजीशन इसका हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला पिस्टन है ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये जो इतना सा पार्ट में जो था गैस, इसको आकर के यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट मिलेगा, तो एक्सपेंशन हो जाएगा इसके लिए। द नेक्स्ट थिंग विच आई राइट ओवर हियर इज, यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर बाहर की तरफ दिया गया, ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। So this implies that from outside the atmospheric pressure is going to exert a certain force. अच्छा, यहाँ पे अपने अलग अलग एरिया ले लेते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं S1, इसका एरिया मान लेते हैं H2, और जो अंदर में जो गैस होगा उसका प्रेशर मान लेते हैं P। तो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, तो वी विल बी ड्राइंग इंडिविजुअल एफबीडी। तो इंडिविजुअल, अच्छा ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड भी है, तो इंडिविजुअल एफबीडी अगर बनाया जाए तो पहले अपने ऊपर वाले पिस्टन का एफबीडी बनाते हैं। सो वी आर बिगिनिंग विद ड्राइंग पिस्टन एफबीडी। सबसे पहले ऊपर वाले पिस्टन का एफबीडी बनाया जाए। तो ऊपर वाले पिस्टन का एफबीडी अगर मैं बनाए तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ, यानी कि M1G नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एरिया S1 है, तो बाहर की तरफ से एक फोर्स एक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया S1। ये वाला फोर्स जो है बाहर की तरफ से एक्ट करेगा। जो अंदर में जो गैस है दैट इज गोइंग टू एक्सर्ट अ सर्टेन फोर्स, तो इसके लिए मान लेते हैं P इज द प्रेशर ड्यू टू द इनसाइड गैसेस, और इसका एरिया S1 है, तो ये अंदर से ये फोर्स एक्ट करवाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी से इज दैट देयर इज अ थ्रेड अटैच्ड। तो ये जो थ्रेड है इसके लिए टेंशन नीचे की तरफ, इसके लिए टेंशन ऊपर की तरफ। तो इसके लिए टेंशन अपने नीचे की तरफ मान रहे हैं, तो ये T जो है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मान ले रहे हैं। So this is the complete FBD which we have drawn for this piston. The weight of the piston in the downward direction, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके वजह से फोर्स जो है इस तरफ लगेगा, जो अंदर जो गैस एनक्लोज्ड है 1 मोल गैस, उसके वजह से प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ, टेंशन नीचे की तरफ। और अगर दूसरे वाले का एफबीडी अगर मैं बनाते हैं, इफ आई ड्रॉ एफबीडी ऑफ द नेक्स्ट पिस्टन, तो एफबीडी ऑफ नेक्स्ट पिस्टन अगर अपने ड्रॉ अगर करते हैं, तो ये वाला जो पिस्टन है इसमें बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस तरफ से फोर्स लगा रहा होगा P0 इंटू H2। वेट इज स्टिल एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन M2G। जो गैस है वो इस तरफ है, तो गैस इस तरफ ढकेलना चाहता होगा, तो ओवर हियर वी आर ड्राइंग इट एज PS1 एंड टेंशनल फोर्स विल बी पुलिंग दिस piston in the upward direction due to which this piston will shift upward। तो ये कुछ ऐसा हो गया, इसके लिए टेंशनल फोर्स ऊपर की तरफ, इसके लिए टेंशनल फोर्स नीचे की तरफ। ये दिमाग में रहे कि जितना भी फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहा है, जैसे कि जो गैस जो प्रेशर वेशर लगा रहा है उसको ध्यान से देख ले उसका डायरेक्शन किस तरीके से। नाउ अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल से द सेम थिंग दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिस्टन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन ओनली इट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, ये बोला है कि इट शिफ्ट्स बाय 5 सेंटीमीटर। सो देयर इज अ शिफ्ट बाय 5 सेंटीमीटर। तो अपने पहले क्या करते हैं, अपने टेंशन निकाल लेते हैं अपर पिस्टन और लोअर पिस्टन के एफबीडी से। तो लोअर पिस्टन के एफबीडी के लिए इक्वेशन अगर पे लिखे तो अपने लिख देते हैं, ये H2 है ना, इसका एरिया H2 है, इसको H2 कर दो भाई। तो फॉर लोअर पिस्टन वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन, P(H2) इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, M2G इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन का अगर मैं बात करें तो P0(H2) और टेंशनल फोर्स T, ये दोनों जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट एट द टेंशनल फोर्स T अगर लिखना है तो P(H2) P0(H2), तो यहाँ पे लिख सकते हैं P माइनस P0 इंटू H2 प्लस M2G। तो ये ऐसा आ गया, ये हो गया फॉर लोअर पिस्टन। अपर पिस्टन के लिए अगर सेम ऐसा ही कोई इक्वेशन अगर लिखा जाए, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया P0(S1) T M1G। तो P0(S1) T M1G, और ये जो है ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स यानी कि PS1 से इक्वल है। तो T ओवर हियर कैन बी रिटन एज PS1 माइनस P0(S1).
तो P minus P naught into S1 minus M1G. तो we are calling this as equation number A and equation number B respectively. 1 2 भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है. अब दोनों से एक बात सही है कि भाई दोनों टेंशन जो है वो सेम होना चाहिए. तो if both the tension is same, then I can write over here that P minus P naught into S1 minus M1G is equal to P minus P naught into S2 plus M2G. So over here I can say कि दोनों में P minus P naught अगर कॉमन ले लें तो P minus P naught S1 minus S2 is equal to M1 plus M2 into G. ये कुछ ऐसा बात आ गया भाई. तो अपने को डिफरेंस इन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, टोटल मास 5 kg दिया है, तो ये टोटल मास 5 kg हो गया. डिफरेंस इन एरिया हम लोगों को पता है, तो ओवर हियर वी कैन कैलकुलेट P which is equal to total mass M total G by difference in area plus P naught. तो ये कुछ ऐसा आ गया. तो अब अगर अपने यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर बात करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये जो प्रेशर है ये कांस्टेंट है. ये प्रेशर कांस्टेंट आ गया ना भाई. ये सब सवाल अगर आपसे छोटा छोटा पूछ लिया जाए रेदर देन आस्किंग यू वन डायरेक्ट प्रॉब्लम, ये ऐसा पूछ सकता है ना. ये अरेंजमेंट बना के दे दिया, पहला सवाल पूछ लिया गैस को हीट करेंगे तो कहाँ जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा. फिर पूछेंगे कि क्या इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो देखो प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. टोटल मास सेम, जी सेम, डेल्टा एस सेम, पी नॉट सेम, so it is turning out to be constant. Now what we need to do, we need to apply PV equal to nRT. तो from PV equal to nRT, तो P का वैल्यू ये आ गया, P का वैल्यू आ गया. शिफ्ट कितना हो रहा है लेंथ, ये वाला बात अपने को बता दिया है. कितना टेम्परेचर से हीट करेंगे अपने को ये जानना है. तो डिफरेंस इन वॉल्यूम अपने को पता है. डिफरेंस इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने लिखना स्टार्ट अगर करें तो P कैन बी रिटन एज P नॉट प्लस M टोटल G बाई डेल्टा S. चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, डेल्टा S into L, where L is equal to 5 centimeter, which we'll write in meter over here. Number of moles is equal to 1 mole. R is gas constant into change in temperature, which is delta T. So from here I can write that delta T is turning out to be P naught plus MTG by delta S into L by R. So if we substitute all the values which is given to us in SI system, we get a value that is equal to 0.9 Kelvin. 0.9 Kelvin. So if we heat this system by 0.9 Kelvin, then the piston will shift through a distance of 5 centimeter in the upward direction. So we are dealing with the sixth problem. Figure shows a cylindrical tube of volume V0 divided into two parts by a frictionless separator. The walls of the tube are adiabatic, but the separator is conducting. So the walls of the tube are adiabatic, but the separator is conducting. Ideal gases are filled in the two parts. When the separator is kept in the middle, the pressure are P1 and P2 in the left part and the right part respectively. The separator is slowly slid and is released at a position where it can stay in equilibrium. Find the volumes of the two parts. तो भाई ऐसा क्वेश्चन को अपने कैसे डील करेंगे अब. तो इनिशियली it is stating that the cylindrical volume is V0, which is divided into two parts. So over here I can say that initially the volume is V0 by 2 and V0 by 2 respectively. And it is containing N1 and N2 moles of gases. तो अब अगर यहाँ से अगर अपने इक्वेशन अगर लिखना स्टार्ट अगर करें तो इनिशियल कंडीशन के लिए अपने ऐसे लिख सकते हैं कि PV इक्वल टू N1 RT. ऐसा लिख सकते हैं ना भाई कि PV equal to N1 RT. Now what we do is we come to the next part. Over here we write P2 V0 by 2 is equal to N2 RT.
So over here I can say if I divide both the equation 1 and equation 2, so on dividing both the equation over here we can say n1 by n2 is equal to p1 by p2. तो ये तो पहले भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया इस बार कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो n1 by n2 is equal to p1 by p2. So over here we can say that the separator will stay in equilibrium at a position such that the pressure on the two sides are equal. इसको slide किया गया ना, so it will stay in equilibrium at a position where the pressure on the two sides are equal. और I can say अगर एक पिस्टन है तो इस तरफ से क्रॉस सेक्शन एरिया अगर किसी पॉइंट पे S है, तो कहीं से अगर P1 S लग रहा है और P2 S लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम तभी रहेगा when both the forces will balance each other out. And since area is same, so I will say P1 must be equal to P2. So over here what we say is we redraw this arrangement. So if I redraw this arrangement, so this arrangement is looking like this. And we consider, suppose the volume of the left part is V1 and that of the right part is V2. तो इसको V2 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं. तो यहाँ पे अभी भी N1 मोल्स है, यहाँ पे अभी भी N2 मोल्स है. सेपरेटर को स्लाइड कर दिया गया सिंपल. तो over here if pressure is equated, so over here I can say that pressure is P0 and P0. And now the wall is conducting. So if wall is conducting, so over here I can say that temperature is T0 and T0. तो P0, T0, V1, V2, N1, N2 ऐसा कुछ अपने लिख देते हैं. तो over here now if I write the expression, so over here after sliding the separator, so after sliding the separator I can say P0 V1 equal to N1 R T0 and then P0 V2 is equal to N2 R T0. तो ये दो इक्वेशन बन गया हमारे पास. And over here again if I divide, then I will get that N1 by N2, this time it is equal to V1 by V2. And now we need to frame an expression, because from both these equations that we have attained, if I call this as equation number 3 and 4, और इन दोनों को अगर नाम देते हैं A और B, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसा अटेन कर लिया है कि N1 by N2 is equal to P1 by P2 is equal to V1 by V2. और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन अगर अपने लिखना चाहें तो अपने लिख सकते हैं कि V1 plus V2 is equal to V0. इसको आप जैसे भी शिफ्ट कर दें तो टोटल वॉल्यूम तो V0 ही रहने वाला है. तो V1 plus V2 can be written as V0. So this we are taking as equation number C. So from this modified equation, that is A, B, C, या फिर इस एक्सप्रेशन से और A, B, C से अपने चाहते हैं कि N1 N2 को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि N1 N2 अपने पास है नहीं. And we need to find V1 and V2 respectively. So over here we can say that V1 is equal to P1 V2 by P2. And यहाँ पे अगर अपने V1 को पुट कर दें, V2 के टर्म्स में निकाल लें, तो now our solving part is left, and on solving we are attaining V1 is equal to P1 V0 upon P1 plus P2, and V2 is equal to P2 V0 upon P1 plus P2. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास. So this is the expression that we are going to attain. So let us deal with the next problem. An ideal monoatomic gas, so ideal monoatomic gas is confined in a cylinder by a spring loaded piston having a cross sectional area of 8 into 10 to the power minus 3 meter square. Initially the gas is at 300 Kelvin and occupies a volume of 2.4 10 to the power minus 3 meter cube, and the spring is in its relaxed state. See figure given below. So over here I mean to say that if the spring is in the relaxed state, then over here the outside pressure is equal to the atmospheric pressure, which is equal to P0. So inside pressure is also P0. Then only the two are balancing each other when the spring doesn't have to elongate or compress. So the initial pressure is equal to P0, which is atmospheric pressure. Next बात अपने पढ़ते हैं. The gas is heated by a small heater until the piston moves out slowly by 0.1 meter.
So now the problem is stating that the piston moves out by 0.1 meter. So ये moves out by 0.1 meter का मतलब हो गया कि ये piston जो है इसको heat किया गया और ये यहाँ पे आ गया. So if the piston moves out by 0.1 meter distance, so there is a change in volume. Change in volume is equal to the distance moved और इसका cross sectional area. तो इतना volume जो है increase हो गया. Now अगर ये 0.1 मीटर से अगर ये बाहर की तरफ अगर जा रहा है, then it implies that the spring force will act in this direction now. And due to spring force, an additional pressure will act along with atmospheric pressure. Along with atmospheric pressure. Now, in order to calculate spring force, we are given spring constant, which is 800 Newton per meter. Atmospheric pressure is 10 to the power 5 Pascal. The cylinder and the pistons are thermally insulated. The piston and the spring are massless and there is no friction between the piston and the cylinder. Neglect any heat loss through the lead wires of the heater. The heat capacity of the heater is negligible. So over here, if I write for initial condition, so initially it is atmospheric pressure, volume is given, and then temperature is also given. So over here I can write for the initial condition, for initial condition. So for initial condition I can write pressure is equal to 10 to the power 5 P. V is equal to 2.4 into 10 to the power minus 3, which is equal to N R, and temperature is equal to 300 Kelvin. So from here I can calculate NR, or basically N. So N over here can be written as 2.4 into 10 to the power 2 upon 300 R. अपॉन 300 आर. हम लोग ऐसा लिख देते हैं इसको. अब क्या है, अब आते हैं फॉर फाइनल कंडीशन. तो इनिशियली प्रेशर जो था वो खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा था, तो अपने लिखते हैं फॉर फाइनल कंडीशन, या जब अपने बोलते हैं कि जब हीटेड अप कर दिया गया, तो फॉर फाइनल कंडीशन. सो नाउ द टोटल प्रेशर इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 10 टू द पावर 5 पास्कल प्लस स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, के एक्स. तो 8000 इंटू एक्स अपॉन एरिया. तो एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो ये अगर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो ये मतलब कितना हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर 5. तो यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर 5. प्रेशर इज डबल्ड पास्कल. वॉल्यूम टोटल का बात अगर अपने करें, so over here it moved out by this distance. So initial volume was how much? The initial volume was 2.4 10 to the power minus 3 meter cube plus cross sectional area is 8 into 10 to the power minus 3 into the length it slide down यानी कि 0.1. अरे दोनों मिला करके वैल्यू आ जा रहा है हमारे पास 3.2 into 10 to the power minus 3 meter cube. तो हो गया वॉल्यूम टोटल. Now temperature final is Vt. Moles of the gas will remain the same, which was the initial value which we have calculated over here. तब यहां से अगर मैं फिर से अगर मैं लगाए PV इक्वल टू nRT, तो P V N की जगह अपने ये वैल्यू पुट कर देते हैं. R into T final. So over here this part got cancelled out, and from here we can calculate temperature final. तो टेम्परेचर फाइनल अगर अपने निकालें तो 3, ये हो गया 4, ये हो गया 100, ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना 4 इंटू 2 8 इंटू 10 टू द पावर 2 यानी कि 800 केल्विन. तो टेम्परेचर फाइनल इज टर्निंग आउट टू बी 800 केल्विन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ऐसा करेंगे. तो अगर बाहर अगर कोई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या कर रहा है भाई, ये बाहर की तरफ ऐसे एलोंगेट करना चाहता है, तो स्प्रिंग फोर्स एक अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर प्रेजेंट है, तो बोथ ऑफ देम स्प्रिंग फोर्स से अपने क्या करेंगे, एरिया जो दिया रहेगा उससे प्रेशर निकाल लेंगे, एंड प्रेशर बीइंग स्केलर क्वांटिटी विल गेट एडेड अप टुगेदर. तो दोनों को ऐड अप करके अपने फाइनल बात लिख देंगे. तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा.
So now let us deal with the next problem. So we are dealing with the next problem. A horizontal tube of length L closed at both ends contains an ideal gas of molecular weight capital M. The tube is rotated at a constant angular velocity omega about a vertical axis passing through an end. Assuming the temperature to be uniform and constant, show that P2 is equal to P1 e to the power m omega square L square upon 2 RT, where P2 and P1 denote the pressures at the free end and the fixed end respectively. तो free end और fixed end respectively. Fixed end का मतलब क्या हो गया? Fixed end means that end which is the point of rotation, और दूसरा वाला जो हो गया वो हो गया फ्री एंड. तो ये कुछ इस तरीके से अपने ड्रॉ कर लेते हैं. तो हॉराइजॉन्टल ट्यूब है जिसका लेंथ L है, contains an ideal gas of molecular weight m. The tube is rotated at constant angular velocity omega. तो अपने मान लेते हैं कि इसको ओमेगा से ऐसे रोटेट कराया जा रहा है. ये फिक्स एंड हो गया इस तरफ से. टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म. Show that the pressure variation is somewhat like this, where P2 and P1 denote the pressure at the free end and the fixed end respectively. So at the free end and fixed end respectively. So now what we do over here is, जो प्रेशर वेरिएशन होगा इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक कि अचानक से प्रेशर कम बेसी हो गया. द प्रेशर विल वेरी. So over here what we are doing is we are considering an element of the gas at a distance x. तो अपने यहाँ से at a distance x एक छोटा पैच अपने सेलेक्ट करते हैं. ये एक dx लेंथ अपने इधर सेलेक्ट कर लेते हैं. So over here we considered the cross sectional area is A. तो हम लोगों ने एक छोटा वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, and this volume is equal to A into dx. है ना भाई. अब यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि प्रेशर P लग रहा है, एंड ऑन दी अदर साइड द प्रेशर इज P प्लस dP. तो प्रेशर जो है वो इस एंड पे ऐसा है. क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से जब ये रोटेट करेगा तो एवरी गैस मॉलिक्यूल विल टेंड टू गो फर्दर अवे. तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जो है ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. तो P2 इज ओवर हियर एंड P1 इज ओवर हियर. ये लिखा है ना, P2 डिनोट द प्रेशर एट द फ्री एंड P एट द फिक्स्ड एंड रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है. तो P2 जो है वो ज्यादा है इससे. और कैसे बढ़ रहा है? तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कुछ आ जाएगा. तो ऐसा हम लोगों को ड्राइव करके दिखाना है. तो ये क्वेश्चन को तुमसे ग्राफिकली ही पूछा जा सकता था कि भाई इसको रोटेट किया गया, इधर P1 है P2 है, कैसे बढ़ रहा है. तो आप एक्सपोनेंशियल एक ग्राफ ड्रॉ कर देते कि ये एक्सपोनेंशियली ऐसा कुछ बढ़ रहा है. ऑल्दो दिस इज नॉट आस्क्ड, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव व्हाट इज आस्क्ड. तो अपने यहाँ पे क्या करें? तो ओवर हियर वी आर कंसिडरिंग कि अगर यहाँ पे अगर एक डीएम मास है, तो ड्यू टू दिस द प्रेशर वेरिएशन विच वी हैव, a net force is going to act in the inward direction, which is going to be A into dP. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A. यहाँ पे P into A इस तरफ एक्ट करेगा, ये P plus dP into एरिया इस तरफ एक्ट करेगा. तो PA and PA will cancel out. We are left with an unbalanced force AdP. Now this unbalanced force will be balanced by m omega square r. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसके रोटेशन की वजह से जो छोटा सा मास है डेल्टा m, इसके वजह से लगेगा डेल्टा m ओमेगा स्क्वायर r, और r कितना है? x है. So due to this, a force is going to act in the other direction. So over here for equilibrium, we will again equate the two forces. दोनों forces को अगर अपने equate करें तो डेल्टा m ओमेगा स्क्वायर r is equal to AdP. ऐसा कर दिया जाए तो फोर्स इक्वेशन लगाया गया इस पर्टिकुलर पैच के लिए. Now the next thing which I am saying is, next thing which we say over here is कि over here dm अगर mass of element है तो we are using PV equal to nRT. तो इस पर्टिकुलर पैच के लिए अगर मैं लगाए तो प्रेशर P, वॉल्यूम हो गया A dx PV इक्वल टू nRT. तो nRT के लिए क्या कर दिया जाए? dm बाई कैपिटल M, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ, R इंटू T. ये कुछ ऐसा कर दिया जाए. So from here we can calculate dm. So dm can be written as dx pm, ये भी होगा A dx अपॉन RT. ये कुछ ऐसा आ गया. अब वापस से अगर अपने इसमें अगर चले जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दैट वी हैव, दिस इज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. तो अपने वापस से अगर यहाँ पे आ जाए तो ओवर हियर वी कैन से दैट AdP
इज इक्वल टू, तो जो dm है या डेल्टा m जिसको हम लोगों ने लिखा, so this can be written as mpa dx upon rt. So now the next part is very easy, area cancel हो गया हमारे लिए, तो dp by p is equal to m by rt, ओमेगा स्क्वायर एक्स भी तो है यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx ये भी तो है यहाँ पे, तो ये x dx को एक साथ रख दिया गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, ओमेगा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो यहाँ पे हो गया p1 p2, वैल्यू ऑफ x इज फ्रॉम 0 to n, तो आ गया ln p2 by p1 is equal to m omega square l square by 2 rt, and hence over here we can write p2 is equal to p1 e to the power m omega square l square by 2 rt. So this is the expression that we have proved this expression, proven this expression. तो उसको इस तरीके से अपने अप्रोच अगर करेंगे तो काम बन जाएगा अपना। एंड ग्राफिकली अगर अपने से पूछा जाएगा तो ग्राफिकली अपने क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल एक ग्राफ बना देंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, ग्राफ खास करके पूछा जा सकता है क्योंकि ये सवाल तो ऐसे पुराना है। ग्राफ कैन बी आस्क्ड इन अ न्यू वे कि ग्राफिकल वेरिएशन कैसा होगा, अपने बोलेंगे भाई एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो ग्राफ को जो है एक्सपोनेंशियल वे में बना दिया जाए। Let us go to the next problem now. We are dealing with the next problem. Figure shows a cylindrical tube of cross-sectional area A fitted with two frictionless pistons. The pistons are connected to each other by a metallic wire. Initially, the temperature of the gas is T0 and its pressure is P0, which equals the atmospheric pressure. So initially, the temperature is T0 and pressure is P0, which is equal to the atmospheric pressure. What is the tension in the wire? The next part is what will be the tension if the temperature is increased to 2 T0. So over here, if I talk about the equilibrium, so the pistons are connected by a metallic wire. Initially, the temperature is T0 and pressure is P0, which is equal to the atmospheric pressure. So for initial condition, so if I write for initial condition, area is A is given. So for initial condition, if I draw FBD of this particular piston, so if I consider this particular piston over here, तो जो एटमोस्फियर है वो खुद एक प्रेशर लगा रहा है बाहर से P0 into A, अंदर वाला प्रेशर भी P0 है तो P0 into A इधर से लग रहा होगा, और कोई टेंशनल फोर्स T लग रहा होगा, तो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो T का वैल्यू तो यहाँ से 0 आ गया, तो इनिशियली देयर इज नो टेंशन इन द वायर विच इज जॉइनिंग द टू पिस्टन्स, इनिशियली यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। नाउ फाइनल कंडीशन पे अपने आते हैं, जो दूसरा पार्ट ने पूछ रहा अपने से, व्हाट विल बी द टेंशन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 2 T0. So now if the temperature is increased to 2 T0, so from PV equal to nRT, so if temperature is doubled, so pressure will also double, तो अपने लिख देते हैं कि finally P final is will become 2 P0, P final will become 2 P0, क्यों, क्योंकि भाई ये fitted है with the two frictionless pistons, the pistons are connected to each other by a metallic wire, तो अगर ये मेटालिक वायर से अगर जुड़ा हुआ तो अगर ये मूव भी करता है तो इवन इफ इट विल मूव, then also the separation between them will remain unchanged, the separation between them will remain unchanged, and hence inside the pressure will rise. क्यों, क्योंकि ट्यूब जो है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, तो प्रीवियसली जो हम लोग एक क्वेश्चन के वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं था, तो पिस्टन के मोशन होने की वजह से एक प्रेशर वेरिएशन भी आ जाएगा, या मतलब अपने बोलेंगे वॉल्यूम वेरिएशन आ रहा था उधर, तो वॉल्यूम वेरिएशन आया तो टेम्परेचर वेरिएशन में वॉल्यूम वेरिएशन कहीं ना कहीं पार्ट ले रहा था। इस केस में वॉल्यूम वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, तो प्रेशर विल बिकम 2 P0, तो प्रेशर अगर 2 P0 अगर बन जाता है, तो अगर मैं बनाता हूँ फॉर फाइनल कंडीशन, तो फॉर फाइनल कंडीशन, तो वी आर कंसिडरिंग द पिस्टन इन दिस वे, तो अब क्या है, इस बारी बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक फोर्स लगाया रहा है P0 into A, ये अंदर से एक फोर्स लगेगा ट्वाइस ऑफ P0 A, और एक टेंशनल फोर्स इधर फोर्स लगाएगा, सो दिस टाइम
2 P naught A in the other direction, P naught A in this direction, P naught A plus T is equal to 2 P naught A. So tensional force is coming out to be P naught into A. So this is the answer for the second part. When the temperature is doubled. So when the temperature is doubled, then this is going to be the aspect which we have. So we are dealing with the last problem. Figure given below shows a cylindrical tube of length 30 centimeter, which is partitioned by a tight fitting separator. The separator is very weakly conducting. ये weakly मतलब सप्ताहित नहीं है, ये कंडक्ट करता है लेकिन वीकली कंडक्ट करता है. इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन कंडक्टर है, वीकली कंडक्टिंग है. एंड कैन फ्रीली स्लाइड अराउंड द ट्यूब. तो भाई कंडक्ट भी करता है और स्लाइड भी करता है. आइडियल गैसेस आर फिटेड इन द टू पार्ट्स ऑफ द वेसल. In the beginning, the temperature in the part A and part B are 400 Kelvin and 100 Kelvin respectively. The separator slides to a momentarily equilibrium position shown in the figure. Find the final equilibrium position of the separator reached after a long time. तो after a long time क्या होगा? तो भाई after a long time लिखने का यहाँ पे क्या मतलब है? After a long time मतलब का ये है कि initially यहाँ पे तो फिलहाल तो एक equilibrium में ऐसे attain हो गया. तो इनिशियली यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, अब बाद में कहाँ इक्विलिब्रियम अटेन होगा आप ऐसा बताइए, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है. तो अगर अपने अभी अगर यहाँ पे अगर माने तो सबसे पहले ऐसा मानते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, यहाँ पे ए भी दिया हुआ तो क्रॉस सेक्शन को एस भी मान सकते हैं अपने से. ए मान लो, ए भी बार बार अपने लिखेंगे, ये मान लेते हैं. तो लेट क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए. So over here, the first thing which I write over here is that at this particular point which is being discussed over here, यहाँ पे 400 केल्विन टेम्परेचर और दूसरी तरफ 100 केल्विन टेम्परेचर है. तो अपने यहाँ पे एक बात ऐसा लिखते हैं कि इस तरफ जब थोड़े देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो क्या होगा. तो आफ्टर सम टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम विल बी अटेन, then the piston will come to a point such that over here I can say कि ये x लेंथ इधर हो गया, तब टोटल लेंथ तो 30 रहेगा. This will become 30 minus x. This will become 30 minus x. तो फाइनल टेम्परेचर पे मान लेते हैं T फाइनल, इस तरफ भी T फाइनल, इस तरफ भी T फाइनल, and both the pressure will also be same. तो P final and T final. तो temperature and pressure will become same. So we consider it to be T final and P final respectively. ठीक है ना भाई. तो ये कुछ ऐसा पार्ट हो गया, इधर T final इधर P final हो गया. So now over here the first thing which I write is कि अभी इस तरफ अपने मान लेते हैं कि प्रेशर P है, P नॉट मान लो या PP मान लो. तो मोमेंटली इक्विलिब्रियम में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N2 है. सो ओवर हियर वी कैन से दैट इनिशियली, तो इनिशियली वाले बात पे अगर अपने इक्वेशन अगर लिखें तो इनिशियली वी कैन से P नॉट, वॉल्यूम का बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू 20, तो A इंटू 20/100 PV इक्वल टू N1 R इंटू 400. तो यहां से अगर अपने P नॉट इंटू A अगर निकालें तो हो गया 5 टाइम्स ऑफ N1 R इंटू 400. तो ये हो गया लेफ्ट पिस्टन के लिए. राइट पिस्टन के लिए अगर अपने निकालें तो फॉर राइट पिस्टन ओवर हियर वी कैन से P नॉट, वॉल्यूम लिखा जाए A इंटू 10/100 इज इक्वल टू N2R इंटू 100. तो ओवर हियर वी अटेन P नॉट इंटू एरिया A is equal to 10 times of N2R into 100. So we attain something like this. तो ये हो गया राइट हैंड साइड के लिए, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए. दोनों को अगर इक्वेट अगर कर दिया जाए तो वी अटेन 5N1R into 400 is equal to 10 N2R into 100. तो दोनों साइड को इक्वेट कर दिया गया. तो बोथ दी फोर्सेस आर इक्वेटेड. So R00 will cancel out. So over here we attain 5 and 2. So 4 times N1 is equal to 2 times N2. Or we can say
that N2 is equal to twice N1. So N2 equal to twice N1. So if I consider N1 as N, this will become 2N. अब प्रेशर फाइनल सेम, टेम्परेचर फाइनल सेम, ये N हो गया, क्रॉस सेक्शन ले लिया आज भी A. तो नाउ इफ आई राइट फाइनली, तो फाइनली वी कैन से P final, P V, so V over here can be written as X into area A, PV equal to nRT, so nRT final. This is for left side of the container, and for right side of the container we write P V equal to N, so this is 2N RT final. तो ये कुछ ऐसा बात आ गया, ठीक है ना. तो over here if I divide both the equations, so on dividing both the equations we can say P final area nRT final, nRT final will get cancelled out. We get 2x equal to 30 minus x, and 3x equal to 30, तो x equal to 10 centimeter. तो x equal to 10 centimeter on the other side आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, x equal to 10 centimeter from left hand. x equal to 10 centimeter from left hand is the correct answer. तो फिर से एक बार सम अप कर देते हैं, इसमें क्या किया. तो इनिशियली इसमें क्या दिया गया भाई, ये एक कंडीशन अपने को दिया हुआ है कि इधर टेम्परेचर 400 केल्विन और 300 केल्विन है, टेम्परेचर अलग अलग दिया हुआ है, और यहाँ पे एक बार मोमेंटरली इक्विलिब्रियम पे आया है. स्लाइड्स टू मोमेंटरली इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ मोमेंटरली इक्विलिब्रियम अगर है, मतलब दोनों साइड अभी फिलहाल प्रेशर सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है, मोल्स ऑफ गैसेस सेम नहीं दिया हुआ है, तो N1 N2 मान रहे हैं, ये 20 और 10 दिया हुआ है. तो PV इक्वल टू nRT लगा दिया गया दोनों साइड के लिए, और प्रेशर इनटू एरिया यानी कि फोर्स जो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा होगा उसको राइट हैंड साइड वाले से इक्वेट कर दिया गया. एंड फ्रॉम हियर वी अटेन कि मोल का रेशियो क्या होगा दोनों में. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव डन इज फाइनली अपने मान लेते हैं कि सेपरेटर जो है वो दूसरे एंड पे किसी x डिस्टेंस पे है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और टेम्परेचर फाइनल और प्रेशर फाइनल रीच हो गया है, वीकली कंडक्टिंग है, तो धीरे धीरे कंडक्ट करते 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 दोनों साइड का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इक्वेट अपने कर देंगे. एंड देन वी राइट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन PV इक्वल टू nRT फॉर लेफ्ट हैंड कंटेनर एंड राइट हैंड साइड ऑफ द कंटेनर, और फिर दोनों को डिवाइड करके वी ऑब्टेन दैट इट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ऐसा कुछ करना है इसमें. सो दिस इज ऑल फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन फॉर KTG. यहीं तक रखेंगे अपने आज.